Hello students. So in geography chapter 2 we are discussing about the physical features of India. So in previous video we have learned about the physiographic division of India and we have the detailed study of the Himalayan mountain and as well as the northern plains. So we have discussed about two physiographic division of India, mountain and northern plains. So in this video we will try to understand the peninsular plateau, but before it we will discuss about the division of northern plain according to the relief differences. So here the Bhabar, Tarai, Bangar and Khadar, these are the four division of northern plain according to the relief differences. So Bhabar, lying at the foothill of Shivalik range, it means जहाँ पर हिमालय रेंज फिनिश होता है, शिवालिक रेंज उसकी फुट हिल पे हमारा जो प्लेन एरिया मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द भाबर. इन दिस एरिया वी फाइंड दैट द टेक्सचर्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉइल्स आर द मोस्ट बिगर. हियर वी फाइंड द कंकर और द बिगेस्ट स्टोन्स in the formation of soils. So these are not well suited for the agricultural work. Next was the Tarai. Just after the Bhabar area we find Tarai. It is a wet and marshy area with wildlife and forest. So just भाबर के जस्ट बाद हमें तराई क्षेत्र दिखता है एंड यह एक वेटेड एंड मार्शी एरिया है. हियर वी फाइंड द फॉरेस्ट एंड सो मेनी वाइल्ड लाइफ. सो इट इज़ द एरिया ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. थर्ड इज द बांगर, ओल्डर एलुवियम प्लेन विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ फ्लूड plains. बांगर ये जस्ट कोई रिवर हमारी किसी एरिया से जा रही है, सो जब उसमें फ्लूड आता है तो वह कुछ एरिया तक उसको कवर करता है और वह जहाँ तक उसको कवर करके जब वो बैक हो जाता है तो वहाँ पर अपना डिपॉजिट करके वो पूरा क्षेत्र बैक हो जाती है. जस्ट इससे हम ऐसे समझते हैं जस्ट ये हमारी कोई रिवर्स है किसी एरिया से जा रही है और इसका पूरा इतना एरिया हम जानते हैं कि ये आपके फ्लूड एरिया में आ सकती हैं. सो हियर वी फाइंड दैट व्हेन रिवर्स गेट द फ्लूड सिचुएशन इट्स मैक्सिमम लेवल इज हियर, सो दैट व्हेन द फ्लूड रिटर्न बैक then here the deposition of soils is also found by the river. So here it is the alluvium and it is called as the older alluvium plain, and in the minimum area like this one is known as the new or the younger alluvium plain. So here the older alluvium plains which rises above the level of the flood plains. So अब यहाँ पे हम एक चीज़ को समझते हैं कि जब फ्लूड प्लेन से जब वो एरिया ऊपर हो जा रहे, इट मीन्स अब यहाँ तक हमारी एरिया हमें मालूम है कि यहाँ तक फ्लूड आ सकती हैं, लेकिन समय के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि अब ये फ्लूड एरिया अब यहाँ से हट करके यहाँ तक आ गई, तो अब ये प्लेन एरिया हमारी ओल्डर एलुवियम कहलाएंगी एंड दिस इज़ नोन एज द बांगर एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो बेटर फॉर agriculture work. Next is the Khadar, younger alluvium of the flood plain. Flood plains like this one. This area is known as the younger alluvium because it comes in the area of the flood. तो हम older alluvium and younger alluvium को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई रिवर किसी एरिया में गुजरती है तो उसके मैक्सिमम वो सबसे ज़्यादा कहाँ तक जा सकती हैं, और लेकिन वह समय के अकॉर्डिंग वो फ्लूड एरिया कन्वर्ट होकर के नदी तक सिमटती चली जाती हैं.
जो एरिया फ्लूड एरिया से ऊपर उठ गया है, इट मीन्स अब रिवर का फ्लूड एरिया या रिवर का लेवल उस वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है जो वहाँ पर पहले पहुँच जाता था। दैट वह प्लेन एरिया हमारी बांगर्स कहलाती हैं, जिन्हें हम ओल्डर एलुवियम प्लेन भी कहते हैं। यंगर एलुवियम जहाँ पर हर साल फ्लूड के द्वारा एक डिपोजिशन देखने को मिलता है, दैट इज द यंगर एलुवियम प्लेन. So younger alluvium plain is known as the Khadar and it is the best suitable for the agricultural work. So it is the division of the northern plain according to the relief differences. Next physiographic division in India, that is the peninsular plateau. So peninsular plateau. So it is the South India's mapping. And this area is known as the peninsular plateau. It is covered by the water area by the three sides and one is known as, so this triangular shape area is called as the peninsular plateaus. So it is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. कि इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं, बिकॉज प्लेट्यूज हमारे ऐसे एरिया होती हैं जो दो साइड से एकदम स्लोपिंग होती हैं, बट बीच का एरिया एकदम प्लेन होता है, एक अच्छा एरिया वहाँ पे समतल देखने को मिलता है. सो इसे हम इसी वजह से टेबल लैंड कहा जाता है, जस्ट लाइक दिस वन. सो दिस फॉर्मेशन इज like this one. These are the sloping area and it is the plain area. Such type of land formation is known as the plateaus. So in India, our peninsular plateau is made up with the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. These are the types of the rocks. It is the parts of Gondwana land. यह आपके गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है. इस वजह से इसे हम इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास भी कह सकते हैं कि इंडिया में अगर हम सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म की अगर बात की जाए तो दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूअर और द ओल्ड लैंड फॉर्म, दैट विल बी द माउंटेन और द हिमालय रेंज. सो हिमालय रेंज इज द यंगेस्ट and peninsular plateau is the oldest landmass. Here we find the black soils. In maximum area we find the black soil due to the volcanic eruptions. कि यहाँ पर ये एरिया पूरी volcanic eruptions के द्वारा बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर black soils ज़्यादातर देखने को मिलती हैं. सो इस एरिया में जो black soils एरिया होती हैं उन्हें हम दक्कन ट्रैप कहते हैं. And one more things we have need to learn about the peninsular plateau, that will be the division of plateau. So this plateau is divided into two parts, Central Highland and Deccan plateaus. So let me try to understand. Here is our Narmada river and Narmada rivers divide this plateau into two parts, north and south. So north part of the in the north of the area of Narmada river is known as the Central Highland and south part is called as the Deccan plateau. So let me understand about the Central Highland. It is lying to the north of the Narmada river, कि ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में देखने को मिलता है. It covering a major area of the Malwa plateau. In that area we find the Malwa plateau and maximum area of the Malwa plateau is covered in Central Highland. It covering a major area of the Malwa plateau. Next is the eastward extension are locally known as the बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. इसमें हमारा ये मालवा प्लेट्यूज है और इसके ईस्ट साइड में हमारा जो एरिया आता है इन्हें हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं. सो दिस थ्री टॉपिक्स यू शुड बी लर्न अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड. इट इज़ लोकेटेड in the north of the
Narmada River and it covering a major area of the Malwa Plateau. The eastward extension are locally known as the Bundelkhand and Baghelkhand. Now, second part of plateau is the Deccan Plateau. So here the only one thing is you should learn. First thing is it is located in the south of the Narmada River, and next topics we learn that the extension of this plateau is also visual in the northeast. इसका नॉर्थ ईस्ट एरिया यू कैन फाइंड दैट द दिस एरिया here the Assam, Nagaland, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh, this area. So here the Assam, Meghalaya, Karbi. So here we also find the extension of the Deccan Plateaus. कि दक्कन प्लेट्यू का कुछ एरिया हमें इस ईस्ट साइड में भी देखने को मिलता है. तो दैट इज कॉल्ड है द मेघालय रेंज, कार्बी एंग्लो प्लेट्यूज एंड नॉर्थ कचा हिल्स. So these three are locally known as here in the eastward extension. Now, one more thing about the peninsular plateau. कि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूस जो आपका मिलता है तो ये कुछ हमें इस एरिया में मिलता है. सो हियर दिस प्लेट्यू इज हियर वी फाइंड द वेस्टर्न घाट and in this area we find the eastern ghat, so that we can say that here the western ghat we find here the at the eastern edge of the Deccan Plateau, and here in that the eastern ghat and western coastal plain or the western edge we find the western ghat. So western ghat and the eastern ghats mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateau respectively. कि आपका जो Deccan Plateau है वह Deccan Plateau ये इस वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है और ईस्टर्न में ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है. दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट इसके ईस्टवर्ड एज और इसके वेस्टवर्ड एज में देखने को मिलते हैं. सो हियर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. सो लेट वी डिस्कस अबाउट दिस टू टॉपिक्स. वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट्स आर लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट के जस्ट पैरेलल में हमें वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है. दे आर कॉन्टीन्यूअस कि ये आपके कॉन्टीन्यूअस हैं, इनमें बहुत इसमें कटा फटा क्षेत्र नहीं मिलता है. इट मीन्स ये एक बार इनका रेंज एकदम कॉन्टीन्यूअस होता है और इनमें जो पासेस बने होते हैं उन्हीं पासेस के थ्रू हम इन्हें क्रॉस कर सकते हैं. थर्ड थिंग्स दे आर द एवरेज एलिवेशन ऑफ 900 to 1600 meters. They have एवरेज एलिवेशन ऑफ द 900 to 1600 meters. कि इनका जो एवरेज हाइट है वह आपके 900 से 1600 मीटर्स के बीच में देखने को मिलती हैं. कि इट मीन्स इनका एवरेज हाइट कहीं पर 900 से 1600 में देखने को मिलता है. इट मीन लोवेस्ट हाइट विल बी द 900 meters and maximum height will be the 1600 meters. And here the Anaimuri is the highest peak of the Eastern Ghat. Sorry, here the Western Ghat, not in the Eastern. So Anaimuri कि Anaimuri आपके वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पिक होती है. So here three things we have to learn that वेस्टर्न घाट आपके वेस्टर्न कोस्ट से बिलोंग करती हैं. ये कॉन्टीन्यूअस होती हैं. इन्हें पासेस के थ्रू हम इन्हें क्रॉस कर सकते हैं. एवरेज हाइट्स 900 से 1600 मीटर्स के बीच में मिलती हैं और इसमें अनाईमुड़ी इसकी सबसे हाईएस्ट पिक होती है. नेक्स्ट इज आवर ईस्टर्न घाट. The Eastern Ghats stays from the Mahanadi Valley to the Nilgiri in the south. Here the Nilgiri and here the Mahanadi. So Mahanadi से
आपके नीलगिरी तक की ये पूरा एरिया आपके ईस्टर्न घाट्स में मिलती हैं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में या ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेंगे। दे आर द डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर्स। इट मीन्स इनके बीच में दरारें हैं बिकॉज मैक्सिमम रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया आर जस्ट फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इट मीन्स मैक्सिमम आपकी जो रिवर्स होती हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल में गिरने की वजह से ये जो क्षेत्र होता है आपका जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है ये काफ़ी कटा फटा है, डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर होता है। They can be dissected by the rivers draining into the Bay of Bengal. So already have told you all कि due to the river draining into the Bay of Bengal, this ghat is the discontinuous and irregular in nature. Their average elevation is 600 meters. इनका elevation or the height, average height will be the 600 meters. So we find that the western ghats are the higher than the eastern ghat. And here the Mahendgiri is the highest peak in the eastern ghat. Eastern ghat की सबसे highest peak Mahendgiri हो. So it is the totally facts about the peninsular plateau of India. And now next landform of India is the Indian deserts. We already know this is the west. It covers the western parts of the India, especially in Rajasthan, some parts of Gujarat and Punjab area. So we find the extension of Indian desert in basically Rajasthan, Punjab and some parts of Gujarat. So it lies toward the western margins of Aravalli Parvat, अरावली हिल्स कि अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में ये हमें ज़्यादा दिखाई देखेंगी। इट इज़ सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड डून्स कि ये आपकी सैंडी प्लेन है। इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड्स देखने को मिलेंगी और यहाँ पर सैंड डून्स होती हैं। सैंड डून्स का मतलब होता है सैंड्स के द्वारा या बालुओं के बने हुए एरियाज या उनके मैदान या क्षेत्र हम कह सकते हैं। सो दैट इज द सैंड डून्स के द्वारा बना हुआ क्षेत्र यहाँ पर मिलता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। वी ऑलरेडी नो कि इन डेजर्ट्स एरिया और द डेजर्ट्स रीजन रिसीव द वेरी लो रेनफॉल और द इट सम ईयर्स और द विदाउट रेनफॉल कि या तो इनको बहुत कम रेनफॉल मिलती है या फिर कुछ ऐसे भी कई साल ऐसे भी निकल जाते हैं जब यहाँ पर बारिश होती भी नहीं है। सो इट इज़ द रीज़न ऑफ वेरी लो रेनफॉल और नो रेनफॉल। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड इट मीन्स ड्राई क्लाइमेट्स with low vegetation cover. So if their climates arid then vegetation also will be neglectable. कि अगर वहाँ पर क्लाइमेट सही नहीं है, वहाँ पर ड्राई है तो निश्चित है वेजिटेशन वहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर बहुत ही कम एरिया में हमें वेजिटेशन दिखाई पड़ती हैं। लूनी एंड वन मोर थिंग कि इस एरिया में जितनी भी रिवर्स जब बारिश के समय में कुछ रिवर्स हमें दिखाई देती हैं लेकिन कुछ दूर तक बहने के बाद वह ख़त्म हो जाती हैं या फिर उस सीज़न के बाद वह रिवर हमें दिखाई नहीं देती हैं। सो यहाँ पर सबसे लार्ज रिवर की अगर बात किया तो दैट इज़ द लूनी रिवर। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन कि इंडिया में लूनी रिवर्स आपके इंडियन डेजर्ट्स में सबसे लार्जेस्ट रिवर देखने को मिलती हैं। सो in this video we have discussed about the peninsular plateaus and Indian deserts. In next video we will discuss about the Indian islands and as well as we have discussed about the Indian coastal plain. Thank you.